Good evening, everybody. Bache, in the previous class, we had finished up transportation in plants. Bache, we are at the end of the chapter. That is, we have to discuss excretion. It is the last life process that we have to discuss in the chapter. Again, a very important life process. इसमें बच्चे हम will be discussing it in two parts. First, we'll be discussing excretion in animals in specific reference to human beings. उसके बाद बच्चे लास्ट एक छोटा सा पोर्शन है excretion in plants. So बच्चे will be first starting up with excretion in animals. All right? Okay. So बच्चे when you talk about excretion in animals, या अगर हम generally भी इसको define करने की कोशिश करें कि excretion क्या होता है, so बच्चे we need to remember excretion is a process which helps us to remove waste. हमारी बॉडी में बहुत सारे टॉक्सिक वेस्ट प्रोड्यूस होते हैं और इन टॉक्सिक वेस्ट को रिमूव करने के लिए जो प्रोसेस यूज होता है दैट इज नोन एज एक्सक्रीशन. तो इसको सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे. हाउ विल वी डिफाइन एक्सक्रीशन? ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिफाइन एक्सक्रीशन. व्हाट इज एक्सक्रीशन? वी विल से इट इज अ physiological process, or you can simply say it is a process by which toxic metabolic waste, it is process by which toxic metabolic wastes are removed from the body. Wastes are removed from the body. अब अच्छा, यहां हम एक टर्म यूज कर रहे हैं मेटाबॉलिक. व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय द टर्म मेटाबॉलिक? इट इज एक्चुअली डिराइव्ड फ्रॉम टर्म मेटाबॉलिज्म. मेटाबॉलिज्म रेफर्स टू बच्चे केमिकल रिएक्शंस इन विच एनर्जी इज आइदर यूज्ड और इट इज बिल्ट अप. तो हमारी बॉडी में बहुत सारे ऐसे केमिकल रिएक्शंस होते हैं जो मेटाबॉलिज्म के अंडर आते हैं. There is interconversion of material from one form to another. There is use of respiratory substrates. Digestive processes are also going on. Repair processes are going on. उनमें बहुत सारे metabolic processes जो हैं वो operate करते हैं. और बच्चे जब ये metabolic processes operate करते हैं तो इनमें बहुत सारे waste products बनते हैं, which are toxic, which are poisonous. And these toxic metabolic waste, they have to be removed from the body. तो इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? एक्सक्रीशन कहते हैं. ओके, अब अच्छे एक्सक्रीशन की जब हम बात करेंगे स्पेसिफिक रेफरेंस टू ह्यूमन बीइंग्स, द प्राइमरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन इन द ह्यूमन बीइंग्स इज किडनीज. किडनीज आर द प्राइमरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स इन ह्यूमन बीइंग्स. ऑलराइट, अब अच्छे जब हम किडनीज की बात करते हैं, ये एक पूरा एक्सक्रीटरी सिस्टम है. देयर आर डिफरेंट पार्ट्स इन्वॉल्व्ड इन इट. We are first going to discuss the human excretory system, uske parts. Then we'll be taking a look at how urine is formed inside the kidneys. Okay, so I'll just go back to your NCERT book. NCERT book की साइड जाएंगे. ठीक है, तो बच्चे NCERT बुक में ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का एक लेबल डायग्राम दिया हुआ है. ऑलराइट, यहां आपको क्या शो किया गया है? राइट किडनी, which are bean shaped organs. Okay, right and left kidney. तो हमारे excretory system में बचे 2 pair of kidneys हैं. Sorry, 1 pair of kidneys. We have 2 kidneys, so there is 1 pair. Okay, right and left. Kidneys are primary excretory organs. They are concerned with filtering of blood. अब बचे if you carefully notice, यहां आपको aorta label किया हुआ दिखाई देगा. Aorta. Then you also have vena cava. अब अच्छा, we have already done transportation of blood. हमने circulatory system human beings में already कर लिया है. And we are aware कि जो aorta है, aorta brings oxygenated blood from heart to various parts. तो इसलिए aorta को red color में दिखाया है. और बच्चे vena cava जो है उसको blue color में दिखाया है. क्यों? Because it takes away deoxygenated blood from organs to बैक टू हार्ट. पर बच्चे यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. अगर आपसे ये पूछा जाता है कि कौन सी आर्टरी
या कौन सी ब्लड वेसल, विच ब्लड वेसल ब्रिंग्स ब्लड टू किडनीज फॉर फिल्ट्रेशन, कौन सी ब्लड वेसल किडनीज के पास ब्लड को फिल्ट्रेशन के लिए लेके आती है। ओके, तो इसका बच्चे क्या आंसर होगा? बच्चे इसका आंसर होगा लेफ्ट, सॉरी इसका आंसर क्या होगा? रेनल आर्टरी। यहां लेफ्ट इसलिए लिखा है क्योंकि उसको दिखाया है इट इज एंटरिंग द लेफ्ट किडनी। तो देयर इज, आपको एओर्टा तो आ रही है, एओर्टा विल डिवाइड इनटू फर्दर इनटू वेरियस आर्टरीज। तो राइट आर्टरी, रेनल आर्टरी एंड लेफ्ट रेनल आर्टरी। Renal arteries will enter the kidneys and they will bring in blood inside the kidney for filtration. Okay, तो ये चीज हमें याद रखनी है। रेनल आर्टरी ब्लड को अंदर लेके जाएगी किडनीज के अंदर फिल्ट्रेशन के लिए। एंड वंस फिल्ट्रेशन इज डन, हाउ दिस ब्लड विल कम आउट? दिस ब्लड विल कम आउट थ्रू रेनल वेन, लेफ्ट रेनल वेन फ्रॉम लेफ्ट किडनी एंड राइट रेनल वेन फ्रॉम राइट किडनी। ओके, तो कई बार बच्चे इस चीज में कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम कैसे सोचते हैं कि आर्टरीज आर कैरिंग ऑक्सीजनेटेड ब्लड, सो वी से समटाइम्स, कई बार बुक्स में इसको प्योर ब्लड लिखा होता है। पर बच्चे प्योर ब्लड का क्या मतलब है? व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय द टर्म प्योर ब्लड? ओके, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय? ओके, हमारे दिमाग में क्या आता है कि जो प्योर ब्लड है वो ऑक्सीजनेटेड है। तो स्टूडेंट्स कई बार इसको ऐसे कंफ्यूज करते हैं कि वो ये सोचते हैं कि आर्टरीज कैसे अंदर ब्लड लेके जा सकती हैं फिल्ट्रेशन के लिए। बच्चे आपको ये याद रखना है कि ब्लड इज ऑक्सीजनेटेड बट दैट ब्लड इज सर्कुलेटिंग फ्रॉम द हार्ट। तो उसके अंदर टॉक्सिक वेस्ट होंगे एंड दीज टॉक्सिक वेस्ट आर एंटरिंग द किडनी थ्रू, ऑक्सीजनेटेड ब्लड तो है पर साथ में उसमें वेस्ट भी है फिल्ट्रेशन के लिए, नाइट्रोजनस वेस्ट, एंड दैट वेस्ट इज फिल्टर्ड बाय किडनी। और जब वेन से ब्लड बाहर आएगा दैट वुड बी डीऑक्सीजनेटेड, that would be deoxygenated, all right, and it would be filtered. Okay, see Anisha, you need to remember one thing. When you talk about deoxygenated blood, it is actually blue in color, bluish in color, क्योंकि बच्चे उसमें CO2 मिक्स्ड होती है। और आपको एक चीज और याद रखनी है, you have to remember one thing. Okay, Avinash, I didn't get your question. Sir, they both same in size means you're talking about kidneys. Okay, तो जनरली बच्चे हम बोल देते हैं कि जो किडनीज हैं उनके साइज में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बट जनरली हम बोलते हैं जो राइट किडनी है वो थोड़ी सी बड़ी होगी लेफ्ट किडनी से। ओके, राइट किडनी विल बी स्लाइटली बिगर देन लेफ्ट किडनी। ओके, थोड़ा सा ही फर्क होगा, ज्यादा फर्क नहीं होता। जैसे बच्चे हमारा राइट लंग है, ओके, जो राइट वाली है, जैसे राइट लंग है थोड़ा सा बड़ा होता है, लेफ्ट लंग थोड़ा सा छोटा है। एग्रीड अनेशा, बोथ आर सेम इन साइज। ओके, एग्रीड। पर बच्चे सेम इन साइज का हम कैसे कहते हैं कि थोड़ा सा साइज बड़ा होगा। आई थिंक इफ यू सर्च इट ऑन गूगल यू विल इजीली गेट कि कितना साइज है, थोड़ा सा ही फर्क होता है, ज्यादा फर्क नहीं है। ओके, चलो उसके बाद बच्चे इफ यू केयरफुली सी you will see two tube like structures which are emerging from the kidneys and these are known as ureters. इनको हम क्या बोलते हैं बच्चे? ureters. One tube from left kidney, one from right. तो left ureter, right ureter. अब बच्चे what is the function of ureter? Once urine is produced inside the kidney, बच्चे एक बार जब यूरिन किडनी के अंदर प्रोड्यूस हो गया है तो it is transferred by ureters to urinary bladder. It is transferred by ureters to urinary bladder. और बच्चे urinary bladder क्या करते हैं? They help in temporary storage. They help in temporary storage of urine. ये यूरिन के टेम्पररी स्टोरेज में हेल्प करते हैं। ऑलराइट, और बच्चे यूरिनरी ब्लैडर की जो ओपनिंग है उसको हम क्या कहते हैं? यूरेथ्रा। थ्रू यूरेथ्रा यूरिन इज removed from the body. Okay,
थ्रू यूरेथ्रा यूरिन इज रिमूव फ्रॉम द बॉडी। ऑलराइट, तो बच्चे ये मेजर पार्ट्स हैं आपके एक्सक्रीटरी सिस्टम के। ओके, सो मेजर और प्राइमरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में जो प्राइमरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन है क्या है? पेयर ऑफ किडनीज। ओके, विल जस्ट राइट अ शॉर्ट नोट ऑन दिस, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। ऑलराइट, सो बच्चे व्हेन यू टॉक अबाउट ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, इसके अंदर क्या आएगा? फर्स्ट ऑफ ऑल योर प्राइमरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स व्हिच आर पेयर ऑफ किडनीज। Kidneys, where are they present? They are bean shaped and they are present in abdominal cavity. Pair and are bean shaped. They are a pair and are bean shaped and located in abdominal cavity. Okay, they are in a pair, are bean shaped and are located in abdominal cavity. But what is their role? They help in filtering of blood. They filter blood. They filter blood to produce urine. ओके, सो दिस इज देयर प्राइमरी रोल। और बच्चे अगर आपसे पूछा जाता है प्राइमरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स क्या हैं, तो बच्चे प्राइमरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स आर किडनीज। उसके बाद बच्चे फ्रॉम अ पेयर ऑफ किडनीज, अविनाश विल बी मूविंग अहेड विद यूरिन फॉर्मेशन, वहां हम ये टर्म्स डिस्कस करेंगे। इट विल कम अंडर यूरिन फॉर्मेशन, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ओके, एंड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, वो सब हम डिस्कस करते हैं। On an average, about 180 liters of filtrate is produced on a daily basis. ठीक है ना? Just a moment. Okay. Second is you have a pair of ureters. They emerge from kidney. Pair emerge from kidneys. Pair emerge from kidneys, and what is their role? And they transfer urine to urinary bladder. तो बच्चे ureters are concerned with transfer of urine from kidneys to urinary bladder. उसके बाद है बच्चे थर्ड पार्ट, ऑब्वियसली यूरिनरी ब्लैडर आ गया। यूरिनरी ब्लैडर हेल्प्स इन टेम्पररी स्टोरेज। दिस इज आवर थर्ड पार्ट, यूरिनरी ब्लैडर। इट इज अ sac like structure, a muscular bag like structure. What is its role? It helps to store urine. All right, और बच्चे जब ये यूरिन स्टोर करता है, इट इज टेम्पररी स्टोरेज, इट हेल्प्स टू स्टोर यूरिन, टेम्पररी स्टोरेज होती है। फोर्थ, यूरिनरी ब्लैडर में एक ओपनिंग है, यूरेथ्रा। ऑलराइट, अब जब हम यूरेथ्रा की बात करते हैं, इट इज अ ओपनिंग फ्रॉम वेयर यूरिन इज रिमूव फ्रॉम द बॉडी। ओपनिंग from where urine is removed. Opening from where urine is removed. All right. अब बच्चे this physical act of removing urine, जैसे बच्चे हम removal of feces को ejection कहते हैं। Removal of feces from the body is called ejection. Similarly, removal of urine from urethra, this process is called micturition.
maturation. But this is a biological term, you can say technical term. Maturation is removal of urine through urethra. अब बच्चे यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इज maturation voluntary act or involuntary act? What do you think? It is voluntary or involuntary? सोच के बताइए. voluntary. ओके, तो इसका ये मतलब है बच्चे voluntary है अगर, that means we can control the act of maturation. So that means there should be some mechanism to control it, control the process of maturation. तो बच्चे ये बिल्कुल सही है. यूरेथ्रा के ओपनिंग में एक स्फिंक्टर मसल होती है, यूरिनरी स्फिंक्टर. यूरिनरी स्फिंक्टर, यूरिनरी स्फिंक्टर regulates opening and closing of यूरेथ्रा. तो बच्चे यहां में एक चीज ये याद रखनी है, अगर हम किसी छोटे बच्चे को देखेगा, स्मॉल ह्यूमन बेबी, उनके अंदर यूरिनेशन जो है वो वॉलेंट्री नहीं होती, क्योंकि बच्चे उस टाइम पे व्हेन यू टॉक अबाउट अ स्मॉल चाइल्ड और स्मॉल बेबी, उस टाइम पे उनके यूरिनरी स्फिंक्टर के ऊपर कंट्रोल डेवलप नहीं हुआ होता, राइट? बट ग्रेजुअली जैसे हम बड़े होते जाते हैं, वी डेवलप कंट्रोल ऑन द यूरिनरी स्फिंक्टर मसल. दैट इज व्हाई यू आर सेइंग इट इज वॉलेंट्री. पर बच्चे हम क्या हमेशा अपनी मर्जी से यूरिन को होल्ड कर सकते हैं? देयर इज अ लिमिट टू इट. ब्लैडर जब क्या होगा, इट वुड बी फुल, आपके ब्रेन के पास मसल क्या जाएगा, मैसेज जाएगा कि आपको यूरिनेशन के लिए जाना है, राइट? तो यूरिनरी ब्लैडर के अंदर स्ट्रेच रिसेप्टर्स होते हैं जो मैसेज जनरेट करते हैं. Once your bladder is full, a message will be generated जो आपके पास जाएगा ब्रेन में, and there will be urge of urination. आप उसे कंट्रोल कर पाओगे पर अर्ज होगी क्योंकि ब्लैडर फुल हो गया, राइट? और आपने कई बार सुना भी होगा, होल्डिंग यूरिन इज नॉट अ गुड हैबिट. ओके, इसका बहुत बुरा असर पड़ता है. और ग्रेजुअली बच्चे जैसे एज बढ़ती जाती है, ओल्ड पीपल में अगेन कंट्रोल ऑन यूरिनरी स्फिंक्टर डिक्रीजेस. तो जब बच्चे जैसे छोटे, व्हेन यू वर अ बेबी, तब आप यूरिन कंट्रोल नहीं कर पाते थे, यूरिनेशन का जो अर्ज है. अब एज यू हैव ग्रोन यू आर एबल टू कंट्रोल. ग्रेजुअली जैसे एज बढ़ती जाएगी, ओल्ड एज में जब आप जाएंगे तो यूरिनेशन के ऊपर जो कंट्रोल है फिर कम होता जाएगा. ओके, सो दिस एक्ट ऑफ मैच्योरेशन, इट इज रेगुलेटेड बाय यूरिनरी स्फिंक्टर. इज दिस क्लियर? ये सबको पॉइंट समझ आ गया? During ejection, anal opening is also regulated by anal sphincter. वहां भी एक स्फिंक्टर मसल होती है, एनल स्फिंक्टर, जिससे इजेशन क्या होती है, रेगुलेट होती है. सिमिलरली स्टमक, जहां डियोडेनम से कनेक्ट होता है, वहां कार्डियक स्फिंक्टर है. डियोडेनम से जब फूड एक बार निकल के स्टमक में आ गया, वो वापस नहीं जा सकता क्योंकि वहां कार्डियक स्फिंक्टर है. सिमिलरली स्टमक से, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, ईसोफेगस से स्टमक में जब फूड आता है, वहां एक स्फिंक्टर मसल है, कार्डियक स्फिंक्टर, which regulates one way flow. Similarly from stomach, once food enters duodenum, वहां भी रेगुलेशन के लिए एक स्फिंक्टर मसल है जिसको हम पाइलोरिक स्फिंक्टर कहते हैं. तो बच्चे स्फिंक्टर मसल्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. ये सब्सटेंसेस मटेरियल्स को हमेशा एक डायरेक्शन में फ्लो करने में हेल्प करते हैं. ऑलराइट, तो बच्चे ये कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स थे हमारे ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के with their general functions. Okay, अब बच्चे हमारी बॉडी में किडनीज के अलावा और कोई भी और एक्सक्रीटरी फंक्शन प्ले करते हैं? प्राइमरी एक्सक्रीटरी रोल तो बच्चे किडनीज रोल प्ले कर रही हैं. ओके, ऑलराइट. सी माधव, यू नीड टू अंडरस्टैंड वॉमिटिंग में क्या होता है. वॉमिटिंग हमें हमेशा नहीं होती. It is actually a mechanism by which अगर आपने कुछ गलत खा लिया तो वो बॉडी से बाहर फेंका जाता है. उसमें बच्चे रिवर्स पेरिस्टाल्सिस होती है. रिवर्स पेरिस्टाल्सिस में क्या होती है, आपके जो इंटेस्टाइन है, एलिमेंट्री कैनाल है,
they will show peristalsis in a way which will push food upwards. उसको रिवर्स पेरिस्टालसिस कहते हैं. तो आपके स्फिंक्टर मसल्स खुल जाते हैं और वॉमिटिंग आती है. अनेशा, स्फिंक्टर ऐसा कैसे कर पाते हैं? दे आर मसल्स, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन. स्फिंक्टर मसल कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन से ओपनिंग को क्लोज या ओपन करते हैं. ओके, ऑलराइट. तो बच्चे लेट्स टॉक अबाउट सम अदर एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स. आप उन्हें प्राइमरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स नहीं कहोगे, बट दे विल कम अंडर कैटेगरी ऑफ accessory excretory organs, or you can say secondary excretory organs. तो ह्यूमन बीइंग्स के अंदर जो सेकेंडरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं, हमारी स्किन बचे सेकेंडरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन के अंदर आएगी. व्हाट आर सेकेंडरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स? ऑर्गन्स अदर देन किडनीज. व्हाट आर सेकेंडरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स? ऑर्गन्स अदर देन किडनीज. ओके, तो बच्चे इसके अंदर जो पहला आएगा वो क्या है? आवर स्किन. बच्चे स्किन इज एक्टिंग एज एन एक्सक्रीटरी ऑर्गन. आप बोलोगे हमने तो ये सीखा था कि स्किन प्रोटेक्शन में हेल्प करता है, राइट? पर बच्चे स्किन के ऊपर बहुत सारे ऐसे ग्लैंड्स हैं जिनमें से केमिकल्स एक्सक्रीट होते हैं. ओके, तो स्किन इसके ऊपर क्या प्रेजेंट होता है? शोज प्रेजेंस ऑफ sweat glands, it shows presence of sweat glands. Okay, contraction and relaxation of digestive system parts, Simran, that is known as peristalsis. Rhythmic contraction and relaxation of alimentary canal, it is known as peristalsis. ये बच्चे जहां हमने ईसोफेगस के बारे में नोट्स में लिखा होगा, ये जरूर एक बार चेक करिए. पेरिस्टालसिस इज रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन. ये एक्चुअली पूरे एलिमेंट्री कैनाल में ही होता है. सो इट हेल्प्स टू पुश द फूड इन वन डायरेक्शन. ओके, देन इट शोज प्रेजेंस ऑफ स्वेट ग्लैंड्स व्हिच प्रोड्यूस स्वेट. बच्चे स्वेट के अंदर एक्सेस सॉल्ट बाहर आ जाता है, excess salt. Okay, then it shows presence of oil glands or sebaceous glands. इसके अंदर sebaceous glands भी present होते हैं. Sebaceous glands, they are also commonly known as oil glands. They produce oil. Okay, then स्किन के अलावा बचे और कौन सा एक्सक्रीटरी ऑर्गन है सेकेंडरी हमारी बॉडी में? आवर लंग्स. ओके, आई थिंक किसी एक बच्चे ने लिखा था लंग्स. ऑलराइट, सो व्हेन यू टॉक अबाउट लंग्स, सिमरन, नो, मैंने जब इसको ईसोफेगस में लिखाया था पेरिस्टालसिस, तो मैंने शायद आपको ये बात बोली होगी कि पेरिस्टालसिस हम ईसोफेगस के अंदर लिखते हैं, बट इट इज एक्सटेंडिंग थ्रू आउट द एलिमेंट्री कैनाल. माउथ के अंदर तो हम पेरिस्टालसिस देख नहीं पाएंगे, तो ईसोफेगस से शुरू होगी ना पेरिस्टालसिस. रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन. इज इट क्लियर, सिमरन? ऑलराइट, चलो. तो बच्चे लंग्स आर आल्सो एक्टिंग एज सेकेंडरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स. कैसे? दे हेल्प टू रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड. इज कार्बन डाइऑक्साइड नॉट अ वेस्ट? It is a waste which is produced during respiration. So it removes CO2 from the body. All right. तो बच्चे ये आपके सेकेंडरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं जो हमें देखने को मिलते हैं, स्किन एंड लंग्स. पर बच्चे प्राइमरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या है? प्राइमरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन इज किडनीज. ऑलराइट, अब बच्चे हम चलेंगे, विल बी टॉकिंग अबाउट फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, कि यूरिन बनता कैसे है किडनीज के अंदर. अब बच्चे व्हेन यू टॉक अबाउट फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, इसके अंदर नेफ्रॉन्स इन्वॉल्व होते हैं. इसके अंदर नेफ्रॉन इन्वॉल्व होते हैं. अब बच्चे व्हेन यू टॉक अबाउट नेफ्रॉन, जब आप नेफ्रॉन की बात करते हो, इट इज कंसिडर्ड स्ट्रक्चरल and
functional unit of kidneys. Structural and functional unit of kidney. तो बच्चे किडनी के अंदर जो यूरिन फॉर्मेशन है उसमें सारा रोल किसका होता है? नेफ्रॉन का. इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फिल्टरिंग ऑफ ब्लड. एंड हाउ मेनी नेफ्रॉन्स आर प्रेजेंट इन ईच किडनी? देयर आर मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स. जैसे बच्चे लंग्स के अंदर एल्वियोलाई होते हैं, दे आर द फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स. सिमिलरली नेफ्रॉन्स, दे आर फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ किडनीज. आई जस्ट गो टू योर एनसीईआरटी बुक. बच्चे नेफ्रॉन के अंदर बहुत सारे इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं. ऑलराइट, this is the basic structure of a nephron. There are many nephrons which are present in your body. अब बच्चे if you carefully see, nephron के अंदर बच्चे बहुत सारे basic parts आपको दिखेंगे. First if you see, आपको ऐसे एक cup like structure दिख रहा है, ये वाला. This cup like structure is known as Bowman's capsule. It is shaped something like this. ऐसा शेप है, इसको हम क्या कहेंगे? बोमन्स कैप्सूल. ऑलराइट, बोमन्स कैप्सूल. अब बच्चे इनसाइड द बोमन्स कैप्सूल व्हाट यू विल सी? बोमन्स कैप्सूल के अंदर आप क्या देखोगे? यू विल सी अ नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज. ये देखो, अ नेटवर्क और ब्रांच ऑफ कैपिलरीज. बच्चे दिस नेटवर्क और ब्रांच ऑफ कैपिलरीज, इसको हम क्या कहते हैं? दिस इज नोन एज ग्लोमेरुलस. What is this network of branch of capillaries? They are known as glomerulus. Okay, glomerulus is present inside the Bowman's capsule. And if you carefully see, बच्चे ये capillaries कैसे बन रही हैं? It is by division of renal artery. It is by division of renal artery. Renal artery will divide into several branches, जिससे ये capillary के bunches बनते हैं नेफ्रॉन के अंदर. तो बच्चे यहाँ से ब्लड अंदर आता है फिल्ट्रेशन के लिए. तो फिल्ट्रेशन आपकी ग्लोमेरुलस के अंदर है. वंस दिस फिल्ट्रेशन अकर्स, फिल्ट्रेशन के बाद ब्लड बाहर जाता है. ऑलराइट, उसके बाद आप देखोगे ऐसे लॉन्ग ट्यूब लाइक कॉइल्ड स्ट्रक्चर है और एक यू शेप ट्यूब नीचे आ रही है. बच्चे दिस, यस अनीशा यू आर एब्सोल्युटली राइट. एफरेंट से अंदर, इफरेंट से बाहर. इफ यू केयरफुली सी, देयर इज दिस यू शेप ट्यूब. ये ऐसे एक यू शेप ट्यूब है नीचे. अच्छा, व्हाट इज दिस यू शेप ट्यूब नोन एज? दिस इज नोन एज लूप ऑफ हेनले. व्हाट इज दिस यू शेप ट्यूब नोन एज? दिस इज नोन एज लूप ऑफ हेनले. ओके, तो यहां ये आपकी यू शेप ट्यूब बन गई. यहां से ये ऊपर और ये यहां घूम के ऐसे बाहर निकलती है. बहुत सारे कलेक्टिंग डक्ट्स, ऐसी ट्यूब्स होती हैं बच्चे जिसमें बहुत सारे नेफ्रॉन्स जुड़ते हैं आके, और इस ट्यूब को हम क्या कहते हैं? कलेक्टिंग डक्ट. ऑलराइट, तो दीज आर दी डिफरेंट पार्ट्स. दीज आर दी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन. ये जो आपकी हेयर पिन ट्यूब बन रही है, इसको हम क्या कहते हैं? लूप ऑफ हेनली. ऑलराइट, और बच्चे इस लूप ऑफ हेनली के चारों तरफ अगर आप देखोगे, देयर इज अ बंच ऑफ कैपिलरीज, नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज. ऑलराइट, इसके अंदर ब्लड जो है वो सर्कुलेट होके बाहर निकल जाएगा थ्रू रेनल वेन. ऑलराइट, अब अच्छा वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ यूरिन इज फॉर्म्ड इनसाइड द नेफ्रॉन. ओके बच्चे, ग्लोमेरुलस और बोमन्स कैप्सूल को एक साथ अगर आपने देखना है तो इसके लिए एक टर्म कॉमन हम यूज करते हैं. इट इज नोन एज मैल्फिजियन कॉर्पसल. इसको हम क्या कहेंगे? मैल्फिजियन कॉर्पसल. Bowman's capsule and glomerulus together. All right, glomerulus and Bowman's capsule together, it is known as the Malpighian corpuscle. अब बच्चे Malpighian corpuscle के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले हो रहा है. ओके, इसके अंदर यूरिन फॉर्मेशन के लिए क्या हो रहा है? यूरिन फॉर्मेशन के लिए यूरिन फॉर्मेशन के लिए जो फिल्ट्रेशन है वो किधर होती है? इट अकर्स इनसाइड द बोमन्स कैप्सूल विद द हेल्प ऑफ
मेरुलस। ओके, तो बच्चे ये कुछ स्टेप्स में होती है, यूरिन फॉर्मेशन जो है वो कुछ स्टेप्स में होगी। अनीशा, रेड ब्लड सेल्स फिल्टर होके बाहर नहीं आएंगे, रेड ब्लड सेल फिल्टर होके बाहर नहीं आएंगे, नो। अगर आपके यूरिन में ब्लड आ रहा है ना, तो इट इंडिकेट्स व्हाट, इन्फेक्शन। तो नॉर्मली ऐसा नहीं होगा, आरबीसी फिल्टर होके बाहर नहीं आ सकते। इज दैट क्लियर अनीशा? अगर ब्लड आ रहा है यूरिन में तो दैट दैट इंडिकेट्स की प्रॉब्लम है कोई, आरबीसी नहीं फिल्टर होंगे बाहर। ऑल राइट, चलो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। यूरिन फॉर्मेशन कैसे होती है? अब अच्छा, व्हेन यू टॉक अबाउट स्टेप्स ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, स्टेप्स, अनीशा यू विल नॉट से कि सिर्फ प्लाज्मा जाएगा, जस्ट वेट फॉर अ व्हाइल। स्टेप्स, स्टेप्स ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। ओके, अब अच्छा, व्हेन यू टॉक अबाउट स्टेप्स ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, इसके अंदर जो पहला स्टेप है, व्हाट इज दैट? द फर्स्ट स्टेप इज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। फर्स्ट स्टेप इज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, जिसको हम कई बार ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन भी बोल देते हैं। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन और ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। व्हाई इट इज नोन एज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन और ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन? क्योंकि बच्चे ये ग्लोमेरुलस के अंदर होती है, और इसमें क्या होते हैं, बहुत छोटे छोटे जो मॉलिक्यूल्स हैं, यूरिया, यूरिक एसिड, वाटर, ग्लूकोज, ये फिल्टर होके बाहर आते हैं, इसलिए हम इसको अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहते हैं। तो बच्चे दिस प्रोसेस अकर्स इन, दिस प्रोसेस अकर्स इन, ये प्रोसेस कहां होगा? दिस प्रोसेस अकर्स इन ग्लोमेरुलस। ये ग्लोमेरुलस के अंदर प्रोसेस होता है। तो बच्चे ये प्रोसेस क्यों पॉसिबल है? हाउ इज इट पॉसिबल? अगर आप ध्यान से देखोगे, जो रेनल आर्टरी है बच्चे, वो जब किडनी के अंदर एंटर करेगी, इट विल कीप ऑन डिवाइडिंग इनटू मेनी स्मॉलर ब्रांचेस। तो ये बहुत स्मॉल डायमीटर की कैपिलरीज बन जाती हैं इसके अंदर। तो बच्चे जब ब्लड इन कैपिलरीज के अंदर आते तो प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ता है, देयर इज वेरी हाई प्रेशर। प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर की वजह से ब्लड की फिल्टरिंग होगी, और बच्चे जब ब्लड की फिल्टरिंग होगी, यू विल गेट अ फिल्ट्रेट विच इज नोन एज प्राइमरी फिल्ट्रेट। तो बच्चे इसके अंदर वाटर भी है, ग्लूकोज भी है, अमाइनो एसिड्स भी हैं, सॉल्ट भी है, पर साथ में यूरिया, यूरिक एसिड जिसको हमें रिमूव करना है वो भी आएगा इसके अंदर। तो यू विल गेट अ प्राइमरी फिल्ट्रेट जिसमें ये सारे कंपोनेंट्स हैं। सो दिस स्टेप विल अकर इन द ग्लोमेरुलस। सो दिस प्रोसेस अकर्स इन ग्लोमेरुलस। व्हाट हैपेंस इन दिस स्टेप? अ प्राइमरी फिल्ट्रेट इज फॉर्म्ड, a primary filtrate is formed। ठीक है बच्चे, यहां एक प्राइमरी फिल्ट्रेट फॉर्म होगा। अब बच्चे इसके अंदर वेस्ट प्रोडक्ट्स तो होंगे, पर साथ में यूजफुल प्रोडक्ट्स भी होंगे। अ प्राइमरी फिल्ट्रेट इज फॉर्म्ड व्हिच कंटेन्स water, salts, urea, glucose, amino acids, etc. अब बच्चे आपके दिमाग में यहाँ एक बात आएगी कि यूरिन जो हम बना रहे हैं, यूरिन फॉर्मेशन जो किडनी में हो रही है, उसमें तो वेस्ट प्रोडक्ट्स हटाने हैं, पर इसमें तो बहुत सारे यूजफुल प्रोडक्ट्स भी हैं, ग्लूकोज भी है, अमाइनो एसिड भी है, ये तो हमारी बॉडी के लिए न्यूट्रिएंट्स है। तो ये भी क्या यूरिन से बाहर चले जाएंगे? नो बच्चे, यहाँ जो प्रेशर क्रिएट हुआ है उसकी वजह से ये कंपोनेंट्स फिल्ट्रेट में बाहर आ गए। क्योंकि अगर बच्चे यहाँ ये प्रेशर क्रिएट नहीं होगा तो बाकी जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो भी बाहर नहीं आएंगे। तो इस स्टेप में यूजफुल प्रोडक्ट्स भी बाहर आ जाएंगे फिल्ट्रेट में।
पर बच्चे जो हमारा यूरिन फॉर्मेशन का सेकेंड स्टेप है, वहां ये यूजफुल सब्सटेंसेस रीअब्सॉर्ब हो जाएंगे। अब बच्चे व्हेन यू टॉक अबाउट अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, तो नॉर्मली ऑन अ ड्यूरेशन जब हम बात करते हैं, ओके देखो यहां दिया हुआ है, नॉर्मली इन अ हेल्दी अडल्ट the initial filtrate in the kidneys, it is about 180 liters. Can you imagine कि आपकी किडनी एक दिन में कितना फ्लूइड फिल्टर कर देती है? फिल्ट्रेशन जो करने के बाद फिल्ट्रेट बनता है, दैट्स 180 लीटर्स, मतलब जो फिल्ट्रेट बन के किडनी से निकलता है। पर बच्चे हम डेली बेसिस पे कितना यूरिन एक्सक्रीट करते हैं? वी एक्सक्रीट ओनली अ लीटर और 2 अ डे। और बच्चे हमें कितना पानी पीना होता है? 2 लीटर्स के करीब पानी पीना होता है टू रिमेन हेल्दी। गर्मियों में हम थोड़ा ज्यादा पानी भी पी लेते हैं, 3 लीटर्स 4 लीटर्स डिपेंडिंग ऑन आवर एक्टिविटी, पर हम बोलते हैं एटलीस्ट हमें 2 लीटर पानी पीना है। ऑलराइट, अब उसके पीछे क्या रीजन है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? इसके पीछे क्या रीजन है? क्योंकि उतना ही हम यूरिन एक्सक्रीट कर रहे हैं, राइट? तो आप इमेजिन करो कि अगर जितना फिल्ट्रेट बना है उतना ही यूरिन बन जाता, तो बच्चे इट वुड हैव बीन वेरी डिफिकल्ट, फिर तो बहुत मुश्किल काम हो जाता, आपको इतना ही पानी पीना पड़ता। एंड डू यू थिंक 180 लीटर पानी हमें इजीली अवेलेबल होता और आप इतना पानी पी पाते? बच्चे हमारे सर्वाइवल ही मुश्किल हो जाता। ओके, तो बच्चे व्हेन यू टॉक अबाउट द सेकंड स्टेप इज concentration of urine, that is known as selective reabsorption. तो बच्चे दैट प्रोसेस विल अकर इन लूप ऑफ हेनले। वो प्रोसेस किधर होता है? सेकंड स्टेप, इट अकर्स इन लूप ऑफ हेनले। होता क्या है? द प्राइमरी फिल्ट्रेट पासेस इनटू द ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स, ये जो ट्यूब्यूल्स हैं इनके अंदर पास होके किधर जाता है? इट मूव्स इनटू द लूप ऑफ हेनले व्हिच इज सराउंडेड बाय द ब्लड कैपिलरीज। तो बच्चे जो एक्सेस वाटर है, ग्लूकोज है, सॉल्ट्स हैं, they are reabsorbed. तो this step is known as selective reabsorption. सेकेंड स्टेप को हम क्या कह रहे हैं? सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। अब बच्चे व्हाट हैपेंस इन सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन? द यूजफुल मटेरियल्स आर रीअब्सॉर्ब्ड, और ये प्रोसेस कहां होता है? लूप ऑफ हेनले। द प्राइमरी फिल्ट्रेट moves from Bowman's capsule into the loop of Henle. ओके, ये लूप ऑफ हेनले के अंदर चला जाता है। अब अच्छा, जो आपका प्राइमरी फिल्ट्रेट है जब लूप ऑफ हेनले के अंदर चला जाता है तो यहां क्या होगा? जो यूजफुल मटेरियल्स हैं वो रीअब्सॉर्ब होंगे, स्पेशली द वाटर। ओके, वाटर along with salts, glucose and amino acids are reabsorbed. ठीक है बच्चे, उनको रीअब्सॉर्ब कर लिया जाता है। और जब ऐसा होता है तो फिर क्या होगा? व्हाट इज गोइंग टू हैपन? इस फिल्ट्रेट की कंसंट्रेशन होती है, दिस प्रोसेस इज आल्सो नोन एज कंसंट्रेशन ऑफ प्राइमरी फिल्ट्रेट। दिस लीड्स टू concentration of filtrate
reducing its वॉल्यूम। ठीक है, तो इसके अंदर क्या हो रहा है बच्चे, जो कंसंट्रेशन है फिल्ट्रेट की वो कम हो रही है, उससे क्या होगा, उसका वॉल्यूम कम होगा, यानी जितना फिल्ट्रेट बना है वो सारा यूरिन में नहीं जाएगा, उसमें से बहुत सारे यूजफुल मटेरियल्स को रीअब्सॉर्ब कर लिया जाएगा। ऑलराइट, इसके बाद है बच्चे थर्ड स्टेप इज ट्यूबुलर सेक्रीशन। ट्यूबुलर सेक्रीशन, अब बच्चे व्हेन यू टॉक अबाउट ट्यूबुलर सेक्रीशन, this is the last step before urine is technically formed। तो बच्चे आपका जो प्राइमरी फिल्ट्रेट है, इट विल पास थ्रू दीज ट्यूब्स एंड विल रीच द कलेक्टिंग डक्ट्स। तो बच्चे यहां क्या हो रहा है, यहां होता है ट्यूबुलर सेक्रीशन। बच्चे यू कैन से दिस इज द लास्ट पोर्शन या लास्ट स्टेप बिफोर यूरिन इज फॉर्म्ड। इसमें क्या होगा बच्चे, अगर कोई भी चीज एक्सेस में रीअब्सॉर्ब हुई है, ओके, तो वो ये लास्ट स्टेप है कि यहाँ वो सॉल्ट्स या वाटर यहाँ ऐड हो सकते हैं, और उसके बाद बहुत सारे कलेक्टिंग डक्ट्स में जो फिल्ट्रेट बचेगा उसको आप क्या बोलोगे, यूरिन। फिर वो हर एक किडनी से, यूरेटर से बाहर कहाँ जाएगा, यूरिनरी ब्लैडर। तो बच्चे ट्यूबुलर सेक्रीशन में क्या होता है, दिस इज द लास्ट स्टेप। एनी मटीरियल या एनी सॉल्ट और वाटर इन एक्सेस। देखो बच्चे, यूरिन की जो वॉल्यूम है उसको कोऑर्डिनेट किया जाता है, रेगुलेट किया जाता है। तो ये कह सकते हो कि ये लास्ट स्टेप है बॉडी के अंदर, कि अगर कोई चीज एक्सेस में एब्जॉर्ब होगी है तो वो कहाँ आ जाए, यूरिन के अंदर आ जाए। एनी सॉल्ट और वाटर इन एक्सेस इज सेक्रीटेड बैक into the filtrate and this collects to form urine। तो बच्चे ऐसे यूरिन अलग अलग कलेक्टिंग डक्ट्स के जो कनेक्शंस हैं उसके थ्रू कलेक्ट होता जाएगा। फ्रॉम ईच किडनी यू विल सी यूरेटर व्हिच इमर्जेस, व्हिच विल कैरी दिस यूरिन टू यूरिनरी ब्लैडर एंड थ्रू यूरेथ्रा इट इज एक्सक्रीटेड। तो बच्चे दीज आर दी मेजर स्टेप्स इन यूरिन फॉर्मेशन। ये सारे स्टेप क्लियर है, इसमें कोई डाउट तो नहीं है? इज दिस क्लियर एवरीबॉडी? ऑलराइट, ओके, चलो लेट्स मूव ऑन, आगे चलते हैं। अब अच्छा, यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस दिया गया है आपकी एनसीईआरटी की बुक में, दैट इज हीमोडायलिसिस। हीमोडायलिसिस, अब अच्छा, व्हेन यू टॉक अबाउट हीमोडायलिसिस, दिस प्रोसेस इज आल्सो नोन एज आर्टिफिशियल किडनी। अब अच्छा, आर्टिफिशियल किडनी क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि बच्चे ये जो प्रोसेस है हीमोडायलिसिस का, ये उन पेशेंट्स के लिए किया जाता है हु सफर फ्रॉम रेनल फेलियर। What do we understand by renal failure? रेनल फेलियर का क्या मतलब है? आपकी किडनीज वर्क नहीं कर रही, ओके, योर किडनीज आर नॉट वर्किंग। अब अच्छा, वंस दिस हैपेंस इट इज अ वेरी डेंजरस सिचुएशन। अगर आपकी किडनी फेल हो गई, किडनी वर्क नहीं कर रही, तो बच्चे किडनीज अगर वर्क नहीं करेंगे तो टॉक्सिक सब्सटेंसेस बनना थोड़ी रुक जाएंगे, वो तो बनते रहेंगे। और बच्चे अगर उसे पेशेंट की बॉडी से रिमूव ना किया जाए तो पेशेंट की सर्वाइवल पे बहुत मुश्किल हो जाएगी, पेशेंट सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो अनलेस द किडनी हील इटसेल्फ या किडनी ट्रांसप्लांट ना हो जाए, तब तक डॉक्टर को डायलिसिस परफॉर्म करना पड़ता है, सो दैट पर्सन के अंदर जो टॉक्सिक वेस्ट बन रहा है उसको रिमूव किया जा सके आर्टिफिशियली। तो बच्चे देयर आर मेनी फैक्टर्स, यस, किडनी ट्रांसप्लांटेशन कैन ऑल्सो अकर। तो इसमें बहुत सारे फैक्टर हैं बच्चे, जैसे इन्फेक्शन है, इंजरी है, रिस्ट्रिक्टेड ब्लड फ्लो टू किडनीज। तो उससे क्या होगा बच्चे, किडनीज की एक्टिविटी पे असर पड़ता है। एंड बच्चे इट लीड्स टू अक्यूमुलेशन ऑफ टॉक्सिक वेस्ट इन द बॉडी। और बच्चे जैसे जैसे टॉक्सिक वेस्ट बढ़ेंगे पर्सन की डेथ भी हो सकती है। तो बच्चे डॉक्टर पेशेंट को मरने के लिए थोड़ी छोड़ सकता है,
तो उसके लिए क्या किया जाता है कि पेशेंट की बॉडी में जो टॉक्सिक वेस्ट बन रहे हैं उनको आर्टिफिशियली रिमूव किया जा सके. हाउ इट इज डन, वो कैसे किया जाता है? बाय प्रोसेस ऑफ डायलिसिस. तो बच्चे डायलिसिस में हम क्या करते हैं? डायलिसिस में व्हाट यू हैव टू डू, वी हैव अ डायलिसिस मशीन. और इसके अंदर बच्चे जो डायलिसिस मशीन के अंदर ट्यूब्स होती हैं, दे आर मेड अप ऑफ सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन्स, जनरली सेलोफेन की बनी होती हैं. तो ये जो ट्यूबिंग है ये सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन की बनी होगी, रिजेंबलिंग समथिंग लाइक नेफ्रॉन्स इन किडनीज. और बच्चे इस डायलिसिस मशीन के चारों तरफ डायलाइजिंग सोल्यूशन है ताकि बिल्कुल वो एनवायरनमेंट क्रिएट किया जा सके जो किडनी के अंदर होता है. अब बच्चे डॉक्टर विल डू व्हाट, डॉक्टर विल टेक आउट ब्लड फ्रॉम एनी सूटेबल आर्टरी. डॉक्टर क्या करेगा, किसी भी सूटेबल आर्टरी से ब्लड को क्या करता है, निकालता है. Then this blood is sent into the dialysis machine. अब अच्छा जब ये ब्लड सर्कुलेट करता है आर्टिफिशियल किडनी के अंदर, तो उसके अंदर जो टॉक्सिक वेस्ट सब्सटेंसेस हैं वो डायलाइजिंग फ्लूइड के अंदर चले जाते हैं और ब्लड प्योरीफाई होके बाहर आ जाता है डायलिसिस मशीन से. एंड देन थ्रू अ सूटेबल वेन इट इज रिटर्न्ड बैक टू द पेशेंट बॉडी. ओके, तो दिस इज हाउ डायलिसिस इज कंडक्टेड. डॉक्टर क्या करेगा, किसी भी सूटेबल आर्टरी से ब्लड को बाहर निकालेगा. इट इज देन सेंट इनटू अ डायलिसिस मशीन. इस डायलिसिस मशीन के अंदर जो बच्चे ट्यूब्स हैं उनका स्ट्रक्चर कैसा है, उनका नेचर कैसा है, दे आर सेमी परमिएबल, दैट विल अलाउ एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स. और इन मेम्ब्रेन्स के चारों तरफ जो फ्लूइड है दैट इज डायलाइजिंग सोल्यूशन, इट इज एक्चुअली हेल्पिंग इन फिल्टरिंग ऑफ ब्लड, समथिंग लाइक किडनीज. जैसे किडनीज के अंदर एनवायरनमेंट है वो इसके अंदर क्रिएट हो रहा है. वंस दिस ब्लड इज फिल्टर्ड, this filtered blood moves out and then from a suitable vein it is sent back to the patient's body. और बच्चे ये प्रोसेस कितनी बार रिपीट करना पड़ेगा बच्चे, जब तक पेशेंट की किडनी रिकवर नहीं करती या पेशेंट का ऑर्गन ट्रांसप्लांट नहीं होता. और इसकी जो बच्चे फ्रीक्वेंसी होती है, कई लोगों में 10 दिन बाद, कई में 7 दिन बाद, कई में 5 दिन बाद, डिपेंड्स ऑन द कंडीशन ऑफ द पेशेंट, दैट इज डिसाइडेड बाय द डॉक्टर. तो बच्चे डायलिसिस जो है एक क्या कह सकते हो आप, इट इज एक्चुअली अ ब्लेसिंग फॉर पेशेंट्स जिनकी किडनी फेल हो गई है, क्योंकि इसके बिना तो वो बिल्कुल सरवाइव नहीं कर सकते. ठीक है, इज दिस क्लियर एवरीबॉडी, सबको समझ आ गया? हाँ जी आकृति. गुड इवनिंग सर. गुड इवनिंग सर, ये जो आर्टरी है सर, वो रियल आर्टरी होती है क्या, जो सेल से बनी होती है? कौन सी रियल आर्टरी बोल रहे हो? सर, ये जो डायलिसिस प्रोसेस है सर, जो आर्टिफिशियल किडनी, ये जो ये आर्टरी निकली हुई है और ये जो वेन्स है वो रियल होती है क्या? आप इन ट्यूब्स की बात कर रहे हो? यस सर. बच्चे ये थोड़ी आर्टरी है, तो हम आर्टरी में से ब्लड निकालते हैं, ये तो ट्यूब्स हैं, प्लास्टिक की ट्यूब्स. ओके सर. ये देखो इधर क्या लिखा है, लाइन फ्रॉम आर्टरी. ओके सर. आप ये सोच रहे हो कि ये आर्टरीज है, नहीं ये आर्टरीज नहीं है. ठीक है, ओके सर. ऑल राइट, ओके बेटा. ओके लावण्य सी, जनरली हमारी बॉडी के अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट जो नॉर्मली प्रोड्यूस होता है दैट इज यूरिया, पर यूरिक एसिड भी थोड़ी क्वांटिटी में प्रोड्यूस होता है. पर कई बार क्या होता है हमारी बॉडी में, जब बायोकेमिकल मैकेनिज्म सही तरीके से वर्क नहीं करते तो यूरिक एसिड की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है. और जब यूरिक एसिड की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है तो उससे हमारे जॉइंट्स में पेन होती है. तो कई लोगों को यूरिक एसिड की प्रॉब्लम होती है. ओके अनेशा सी, आर्टिफिशियल किडनी अगर किडनीज की फंक्शनिंग के लिए हेल्प करना है तो हीमोडायलिसिस ही है, और क्या प्रोसेस कर सकते हैं? हमने तो किडनीज की फंक्शनिंग में हेल्प करना है ना, तो हीमोडायलिसिस ही है. और जब तक वो ठीक नहीं हो जाएंगी या ट्रांसप्लांट नहीं हो जाती किडनी तब तक हीमोडायलिसिस करनी पड़ेगी, नहीं तो पेशेंट सर्वाइव नहीं कर सकता. ऑल राइट, चलो ओके. तो बच्चे दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ एक्सक्रीशन इन एनिमल्स. बच्चे विल क्विकली प्रोसीड टू एक्सक्रीशन इन प्लांट्स. ऑल राइट, अब बच्चे जब आप एक्सक्रीशन इन प्लांट्स की बात करते हो
प्लांट्स के अंदर बच्चे ज्यादा मेजर एक्सक्रीटरी कोई भी पार्ट्स नहीं हमें मिलते, जैसे हमारे अंदर किडनी है, ऐसा कुछ आपको प्लांट्स के अंदर नहीं दिखेगा। अब बच्चे प्लांट्स के अंदर जो मेजर स्ट्रेटेजी है वेस्ट प्रोडक्ट्स को रिमूव करने की, अगर आप देखो प्लांट्स में मेजर वेस्ट प्रोडक्ट्स क्या है, CO2 एंड O2। अब आप बोलोगे प्लांट के लिए ऑक्सीजन कैसे वेस्ट प्रोडक्ट है? बच्चे ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्लांट हैज टू टेक इन CO2 एंड बाय प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज ऑक्सीजन। तो जो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन बनती है वो रिलीज कर देता है, पर रेस्पिरेशन के टाइम उसे ऑक्सीजन की जरूरत है। तो अगर फोटोसिंथेसिस से उसे ठीक ठाक ऑक्सीजन नहीं मिल रही तो बाहर से भी वो ऑक्सीजन लेगा, और रेस्पिरेशन के एंड में क्या बनता है, CO2। फिर बचे एक्सेस वाटर, H2O, ये भी वेस्ट होता है प्लांट के लिए। ये तीनों कैसे रिमूव होते हैं? बाय प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन, वाटर रिमूव हो जाएगा, CO2 और O2 सिंपल एक्सचेंज से। तो दिस विल अकर थ्रू स्टोमेटा। लीफ सर्फेसेस पे स्टोमेटा प्रेजेंट है, जहां से कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और एक्सेस वाटर निकल जाएगा। ओके बच्चे, सिमिलरली प्लांट्स के अंदर रूट हेयर्स हैं जो गैसियस एक्सचेंज में हेल्प कर रही हैं, ये हमने रेस्पिरेशन में पढ़ा था। प्लांट्स के जो रूट हेयर्स हैं उनके थ्रू गैस एक्सचेंज हो रही है, तो वहां भी CO2 और O2 बाहर निकल सकते हैं। अब बच्चे, अदर देन दिस प्लांट्स के अंदर और भी बहुत सारे वेस्ट प्रोडक्ट्स बनते हैं, जैसे रेजिन्स हैं, गम्स, टैनिन्स, लैटेक्स एटसेट्रा। अब बच्चे प्लांट क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करते हैं? इनको अपने अंदर ही स्टोर कर लेते हैं, या तो लीव्स के अंदर स्टोर कर लेंगे, बार्क के अंदर स्टोर कर लेंगे, जाइलम के अंदर स्टोर कर लेंगे, रूट्स के अंदर स्टोर कर लेंगे। दे विल स्टोर देम, वो अपने इनको पार्ट्स के अंदर स्टोर कर लेते हैं। और सिमरन रेजिन, ये वो वाले रेजिन नहीं है, रेजिन्स आर अ ग्रुप ऑफ केमिकल्स। रेजिन तो किशमिश होती है, RAI, ये RE है। ओके तो रेजिन्स की जब हम बात करते हैं बच्चे, रेजिन्स आर अ ग्रुप ऑफ केमिकल्स, टैनिन्स, गम्स, लैटेक्स, रबर। बच्चे ये सब प्लांट के लिए वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं। इंटरेस्टिंग बात क्या है, हमारे लिए यूजफुल है। जैसे बच्चे अगर हम लैटेक्स की बात करते हैं, ये रबर है जो हमें ये रबर ट्री से मिलती है, इसको देखो हम कमर्शियली यूज करते हैं। बहुत सारे बच्चे प्लांट के जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उन्हें मेडिसिनल वैल्यू होती है उनकी। आप खुद इमेजिन करो, हम टी पीते हैं, टी कहां से मिलती है हमें? लीव्स से। लीव्स के अंदर वो कैसे आता है? टैनिक एसिड। टोबैको हम यूज करते हैं, उसमें निकोटीन होती है, वो प्लांट का वेस्ट प्रोडक्ट है। प्लांट की जो मेडिसिन होती हैं बच्चे जो बनती है वो प्लांट के वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं जो प्लांट अपने अंदर स्टोर कर लेता है। कई बार बच्चे प्लांट और क्या करता है, अपने रूट्स के थ्रू टॉक्सिक सब्सटेंसेस को सॉइल के अंदर रिलीज कर देता है, ये भी होता है, ये इक्लिप्टिस के अंदर होता है। ओके तो बच्चे प्लांट ये भी स्ट्रेटेजी फॉलो कर सकते हैं, या तो टॉक्सिक सब्सटेंसेस को अपने पार्ट्स के अंदर स्टोर कर लो, या उनको रूट्स के थ्रू रिलीज कर दो सॉइल के अंदर। तो बच्चे इनके अंदर जो एक्सक्रीटरी सिस्टम्स है वो बहुत ही सिंपल है, नो मेजर एक्सक्रीटरी ऑर्गन सच एज किडनी। तो CO2, O2 water removed from stomata, other waste products like resins, gums, tannins, latex, it is stored in various parts of the plant. Most of these waste products have commercial importance, ये हमारे लिए क्या होते हैं? commercially important होते हैं। ठीक है बच्चे, तो बच्चे दिस इज इट, एक्सक्रीशन ऑफ प्लांट्स में हमें इतना ही करना है, दिस इज द पोर्शन। ऑलराइट, इज दिस क्लियर? एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। ऑलराइट चलो, यहां बच्चे एक बहुत इंटरेस्टिंग आई कैन से पैसेज इज गिवन बेस्ड ऑन ऑर्गन डोनेशन। दिस इज समथिंग विच इज नॉट न्यू। हमारे कंट्री में बच्चे ऑर्गन डोनेशन के लिए इतनी अवेयरनेस नहीं है, हमारी कंट्री में इतने ज्यादा लोग वॉलंटरीली ऑर्गन डोनेशन करते भी नहीं है। मुद्दित ब्रेन ट्रांसप्लांटेशन, बच्चे I don't think so there is any successful brain transplantation that has been done till today। बच्चे ब्रेन ट्रांसप्लांट में सोचो डॉक्टर को कितनी सारी नर्व्स जोड़नी पड़ेंगी, इज दैट पॉसिबल? इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट। I don't think so अभी तक कोई ब्रेन ट्रांसप्लांट हुआ है।
आई हैव नेवर रेड कि ब्रेन ट्रांसप्लांट हुआ है. आई डोंट थिंक सो. दिस इज समथिंग वी कैन सी ऑन गूगल. ब्रेन ट्रांसप्लांट तो आई थिंक आज तक कभी नहीं हुआ होगा. मैं तो यही सोच रहा हूँ डॉक्टर कितनी नर्व्स जोड़ेगा, नर्व्स कैसे जोड़ेगा इतनी सारी. देयर आर सो मेनी नर्व्स व्हिच आर इमर्जिंग फ्रॉम द ब्रेन. इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट. ऑलराइट. तो ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन या ऑर्गन डोनेशन की जब हम बात करते हैं बच्चे, अभी भी हमारी कंट्री में इसके लिए अवेयरनेस नहीं है, और हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वॉलंटरली इसको करना भी नहीं चाहते. ओके, तो ये एक बहुत बड़ी दिक्कत है. अब बच्चे ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के लिए क्या करना पड़ता है? यू हैव टू प्लेज योर ऑर्गन्स. ऑनलाइन जाके आप अपने ऑर्गन्स प्लेज कर सकते हो. तो आपकी जब डेथ होगी तो ऑर्गन्स को कलेक्ट कर लिया जाता है. तो इनमें कुछ कॉमन है बच्चे, जैसे कॉर्निया है, आईज में यूज होती हैं ये, किडनीज, हार्ट, लिवर, पैंक्रियास, लंग्स, इंटेस्टाइन्स, बोन मैरो, बच्चे ये सब यूज हो सकती हैं. ओके, तो दिस इज समथिंग बच्चे विच कुड बी ऑफ ग्रेट हेल्प टू समबडी हु इज सफरिंग. क्योंकि बच्चे जल्दी आपको ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए नहीं मिलते. ऑलराइट. Atiya, how many stomata are present in leaf? बच्चे this varies from species to species, पर बहुत सारे होते हैं. ओके, स्पीशीज टू स्पीशीज ये वेरी करता है, पर स्टोमेटा का नंबर बच्चे बहुत ज्यादा होता है. ओके, ऑलराइट. तो ह्यूमन में नहीं हुआ, बट एक मंकी पर एक्सपेरिमेंट किया गया था. आई एम नॉट श्योर बच्चे, ह्यूमन में तो आज तक ब्रेन ट्रांसप्लांट अटेम्प्ट भी किया गया है, वो तो सक्सेसफुली नहीं हो पाएगा. इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट. चलो, तो बच्चे ऑर्गन डोनेशन, आई थिंक दैट इज आल्सो क्लियर. इसमें ऑर्गन प्लेज करने होते हैं. ओके, सो न्यूरोसर्जन रॉबर्ट जे वाइट हैज ग्राफ्टेड द हेड ऑफ अ मंकी. ओहो, ऑलराइट. एंड द मंकी जस्ट लिव फॉर 20 आवर्स. उसके बाद मर गया. वही तो प्रॉब्लम है. दैट मीन्स दैट इट्स नॉट सक्सेसफुल. 20 घंटे तो कुछ भी नहीं है. ऑलराइट. ओके, चलो बच्चे नेक्स्ट चैप्टर हम कौन सा स्टार्ट करेंगे? नेक्स्ट चैप्टर जो बच्चे हम स्टार्ट करेंगे, आई थिंक वी शुड गो ऑन टू लाइट चैप्टर. आई थिंक ये हमने प्रीवियस क्लास में भी डिस्कस किया था. रिफ्लेक्शन का चैप्टर स्टार्ट करेंगे हम. ऑलराइट, we'll start off with reflection. Okay, Anisha, sample paper discuss करना चाहते हो पहले? If you want, if you say so, on Monday we can discuss the sample paper. 50 questions होंगे तो it will take some time. All right, ठीक है. So Monday what we'll do is we'll pick up a sample paper that CBSE has issued. वो sample paper हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं, तो आपको एक बार आइडिया हो जाएगा कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं. नो प्रॉब्लम्स. We'll discuss the sample paper on Monday, and from Wednesday then we'll be starting over with reflection of light. बच्चे लाइव प्रोसेसेस का जो टेस्ट है मैं जल्दी आपके ग्रुप में डाल दूंगा. ठीक है, ऑन दी मैथ्स ऑनलाइन ऐप, उस पे मैं शेयर कर दूंगा, व्हाट्सएप पे भी शेयर कर दूंगा. अबाउट 100 क्वेश्चंस होंगे उसके अंदर. ठीक है, तो एक बार इसको रिवाइज कर लीजिए. टेक 1 or 2 days, रिवाइज इट थ्रू. तो संडे को मैं उसको शेयर कर दूंगा आपके साथ. क्लियर एवरीबॉडी? लाइव प्रोसेसेस 100 क्वेश्चंस का टेस्ट होगा, वो 100 MCQs. क्लियर एवरीबॉडी? ओके, चलो, ऑल राइट बच्चे. सो आई विल बी एंडिंग द सेशन हियर. नेक्स्ट क्लास विल बी पिकिंग अप द साइंस सैंपल पेपर. इफ यू कैन गेट अ प्रिंट, तो उसका प्रिंट निकाल के रख लीजिएगा. वैसे तो मैं डिस्प्ले करूंगा ही स्क्रीन शेयरिंग में, ठीक है ना? तो उसको एक बार आप डाउनलोड करके जरूर रखिएगा अपने पास. ओके बेटा, चलो, आई विल बी एंडिंग द सेशन हियर बच्चे. सी यू ऑल नेक्स्ट वीक.